तो आप सभी का स्वागत है सक्षम लॉ सोसाइटी के आज के अकाउंटिंग सेशन में। और जैसा कि हम पिछली क्लास में टैली सीख रहे थे, और और आज की क्लास में हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और सेम ये क्लास जो है वो मिस्टर विक्की गौतम जी लेंगे। छोटा सा बदलाव आज की क्लास में है। और जैसा कि पिछले कुछ सेशंस को हमारे प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम ने लीड किया था, सो आज के हमारे नए लीडिंग पर्सन है मिस दीप्ति चावला मैम। सो फॉर द brief notion of today's leading person and resource person, I'd like to invite Kanish Fatima. Over to you, Kanish Fatima. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I am Ganesh Fatma on the behalf of Saksham Rozgar Society. It's a privilege to introduce Miss Deepti Chawla, ma'am. She is an education professional with a Master of Philosophy MPhil focused in Behavioral Science Education from CCSU, Meerut. She is an emotional intelligence trainer and coach. She has 20 years of reach in depth and extension experience in teaching and mentoring the youth. She exhibits excellent communication in interpersonal problem solving, leadership, and team building skills. She dedicated and committed to harnessing 21st century skills in today's youth. She has won international award for young people IAYP. Currently, Miss Chawla is associated with Kothari International School, Noida as HOD, Social Science Department and Activity Head. And now I am going to introduce our resource person, Mr. Vicky Gautam. He is a commerce graduate with BCom honors degree from Motilal Nehru College, University of Delhi. Alongside his graduation, he completed an internship at VGHSR and Associates LLP, a chartered accountancy firm, where he later worked as an auditor. His professional journey includes working as an accountant at Samsung, then handling financial reporting in the finance department of an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kessel India, a Germany based organization. Beyond his corporate experience, he has been actively involved in social work, contributing contributing to NGOs such as Saksham Bharti, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. Throughout his journey, he has been mentored and guided by Jyotika Karla, the president of Saksham Rozgar Society. Their association dates back to his school days in the sixth class, and she has continuously supported and motivated him in both his personal and professional life. Currently, Vicky is pursuing a law degree with the goal of becoming a lawyer, further expanding his expertise in finance, auditing, and legal affairs. Thank you. So thank you, Kanish Fatima ji, for the introductions. Now I'd like to request our resource person to start the session. Over to you, Vicky Gautam ji. Thank you so much, Mr. Abhishek, and thank you so much, Kanis Fatma ji, uh, for introduction. And first of all, again, thanks to Saksham Rozgar Society for giving me this opportunity to take a class. And आप सभी ऐसा जानते हैं कि आज हमारी थर्ड क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी आज तीसरी क्लास है। तो अगर हम बात करें पहली क्लास के रिगार्डिंग के बारे में, तो पहली क्लास में हम सभी ने ये जाना था कि बेसिकली अमन जो होता है, एक स्टोरी के माध्यम से हमने जाना था कि अकाउंटिंग किस तरीके से किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे कोई एक इंसान किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या उसकी इनकम बनने वाली होती है, किस तरीके का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरर होता है या फिर ट्रेडर होता है। तो उस तरीके से पहली क्लास में हमने ये सब कुछ जाना था। दूसरी क्लास में हमने उसी चीज को थोड़ा सा, हम टैली के अंदर आए थे, हम टैली में हमने ये सीखा था कल की क्लास, मतलब सैटरडे वाली क्लास में, कि टैली के अंदर किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं। और कंपनी के बारे में हमने कल काफी जाना था, और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ाई की थी हमने सैटरडे को। तो कल के हमारे टॉपिक पे हमारा लेजर क्रिएशन वाला जो पार्ट था, बेसिकली वो पेंडिंग रह गया था ड्यू टू लेस टाइम। तो आज हम उस टॉपिक को खत्म करेंगे, लेजर क्रिएशन वाले को। पर उससे पहले मैंने आप सभी को एक असाइनमेंट, एक होमवर्क दिया था, जो कि सैटरडे में था, कि आप सभी को टेली पे कहीं ना कहीं कंपनी क्रिएट करनी है, मन्नत फर्नीचर के नाम से, जैसे ज्योतिका मैम हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा था। तो कई लोगों का, कई स्टूडेंट्स का उस पर रिस्पॉन्स आया था, जिससे मैं बेहद खुश हूँ कि आप सब ने उस पर काम कर रहे हो कहीं ना कहीं।
तो अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कल कई सारे बच्चों ने वो चीज़ बनाई है। और रही बात, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले पुष्पा पुष्पा ने कंपनी क्रिएट करी थी मन्नत फर्नीचर की, तो वेरी गुड पुष्पा। उसके बाद धीरे धीरे फिर लोगों ने फिर एक तान्या उन्होंने बनाई कंपनी मन्नत फर्नीचर के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनाया खुशबू खुशबू प्रजापति ने बनाई। उसके बाद हम बात करें दिलीप दिलीप ने बनाई कंपनी। उसके बाद विक्की ने बनाई कंपनी। उसके बाद बसंता ने बनाई कंपनी। उसके बाद मतलब काफी लोगों ने ट्राई करा। और बेहद अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने ट्राई करा और आप सबके हाथ से कंपनी बनी मन्नत फर्नीचर आप लोगों ने बनाया। तो ये बेहद अच्छी बात है कि आप लोग चीजें तो सीख रहे हैं और पहले ही क्लास में आप लोगों ने टेली में कंपनी बनाना भी सीख लिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप लोग किस क्लास को लेके कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है ना। तो आप सामने देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर जो हमारी कल वाली ही पीपीटी है। तो तो ये सब हमने कल की डेट में सारा कुछ पढ़ लिया था, यहाँ तक कि कंपनी भी क्रिएट कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो था लेजर क्रिएट करने का। तो लेजर क्रिएट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्सपेंडिचर्स के नेचर क्या होते हैं। अगर हमें एक्सपेंडिचर के नेचर नहीं पता होंगे तो हम उसके एक्सपेंडिचर को हम उस टैली के अंदर ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप टैली के अंदर ग्रुप्स होते हैं। हर एक्सपेंडिचर का एक ग्रुप होता है कि वो डायरेक्ट खर्चा है या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो फिक्स एसेट है या फिर क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको उसकी पहली प्रीवियस क्लासों में सिखाया हुआ था कि किस हेड के अंदर कौन सा खर्चा आता है, कौन सा खर्चा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। बेसिक टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी ली थी। बट उससे पहले हम कुछ और रिवाइज करेंगे बेसिक टर्म्स के ऊपर कि आपको वो चीजें और अच्छे से रिपीट हो जाएं और आप चीजों को और बेहतर तरीके से सीख पाएं। तो उससे पहले जो हमने कल टैली करा था तो उसमें टैली में दो तीन चीजें हमारी पेंडिंग रह गई थी, तो पहले उसको हम कवर अप करते हैं। तो टैली के बारे में हमने कल पूरा बताया था कि टैली कैसा सॉफ्टवेयर है, टैली वर्क कैसे करता है, टैली ऑफलाइन वर्क करता है, टैली के बहुत डाउनलोड टैली को किस तरीके से गूगल पे जाकर टैली को डाउनलोड किया जाता है, जो वर्जन आपको चाहिए उस वर्जन में डाउनलोड हो जाता है, सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो अगर बात करें टैली वर्सेस अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें कि टैली और अदर सॉफ्टवेयर अपने आपस में किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं टैली जो है वो मेड इन इंडिया है, जो भारत में ही बना था, बैंगलोर में। आप लोगों को बताया था मैंने, गोयनका जी के द्वारा बनाया हुआ था। ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जैसे हर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, नेटवर्क से काम करते हैं, बिना इंटरनेट के वर्क नहीं करते। जो बुक्स हो गया आपका, क्विक बुक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ऑनलाइन है, आप इसको ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। यू नीड इंटरनेट फॉर रन दिस सॉफ्टवेयर। ओके। तो लेकिन जीएसटी जैसे अपना टेली में क्या है कि ऑफलाइन भी वर्क करता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी रेडी। हमारे मैंने आपको कल भी बताया था, संडे को बताया था कि जीएसटी की रिकंसिलिएशन जो समरिया होती है जीएसटी की, वो टैली के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। जो जीएसटी की रिटर्न होती है ना, जीएसटीआर 1 सेल्स की रिटर्न, इस तरह के जो भी रिटर्न होती है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। हमारी जीएसटी की जो भी रिटर्न होती है टैली के अंदर ऑटोमेटिक बन जाती है। बात करें हाई कस्टमाइजेशन। हाई कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आप टैली के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत सारे होते हैं, इसमें ना बहुत सारे होते हैं। इसमें टीडीएल बोलते हैं, उस फंक्शन को टीडीएल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप इनवॉइस बना रहे हो, अब आप इनवॉइस जनरेट करके आप इनवॉइस बना दिया, उसमें आप साइन करने पड़ते हैं फिजिकली। बट टैली में कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप डिजिटल साइन कर सकते हो, तो आपको बार बार अपने हाथ से साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कस्टमाइजेशन का एग्जाम्पल है। आप लोगो क्रिएट कर सकते हो, वैसे मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप टैली में इनेबल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो टैली काफी बेहतर है, ये सॉफ्टवेयर काफी इजी और बेहतर सॉफ्टवेयर है हम लोगों के लिए। दूसरा बात करते हैं एक बिजी। बिजी भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका टैली होता है वैसे सेम बिजी भी होता है। वो भी क्या करता है, ट्रेडर्स और गुड्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो काफी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। तो वो लोग जो स्टॉक में डील ज्यादा करते हैं, गुड्स से रिलेटेड काम करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं बेसिकली, फिनिश गुड्स परचेज किया, फिनिश गुड्स को सेल कर दिया, उस चीजों के लिए स्पेशली लोग बिजली को यूज करते हैं। ठीक है ना। जोहो बुक्स, अभी इसकी मैं बात कर रहा था, जोहो बुक्स जो है ऑनलाइन चलता है, वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है एज लाइक टैली। तो जोहो बुक्स हो गया आपका ऑनलाइन है, मॉडर्न के यूआई होते हैं जैसे, उसके ऊपर काम करता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन होते हैं, मतलब उस पे ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसके जो लिमिटेड एक्सेस होता है, आप उसमें लिमिटेड ही एक्सेस कर सकते हो। टेली रिमेन्स द मोस्ट ट्रस्टेड फॉर इंडियन एसएमईज। ठीक है ना। एसएमई मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटी मोटी, जो बड़ी छोटी स्मॉल मीडियम जो कंपनीज होती है, सबके लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग टैली के ऊपर। ठीक है ना। बात करें समरी की,
तो टैली इज अ सिंपल एंड पावरफुल अकाउंटिंग टूल, जैसा हम सभी ने देख ही लिया था। इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आपने देखा था कितनी जल्दी डाउनलोड हो गया था, इंस्टॉल हो गया था हमारा टैली उस दिन। कंपनी एंड लेजर क्रिएशन इज बिगिनर वेरी फ्रेंडली, अभी हम सीखने वाले हैं, वो काफी फ्रेंडली और काफी इजी होता है, अभी आप देखेंगे बहुत इजीली लेजर क्रिएट हो जाते हैं टैली के अंदर। लास्ट पॉइंट है आइडियल फॉर इंडियन बिजनेसेस विद ऑफलाइन एंड जीएसटी सपोर्ट, जैसा अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि वो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और दूसरा है कि जीएसटी का फुल सपोर्ट करता है। तो कल की क्लास में बेसिकली यही सब कुछ था, बस लेजर क्रिएशन हमारा पेंडिंग रह गया था। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी बेसिकली क्लास होने वाली है दैट विल बी ऑन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर होने वाली है, कि एक्सपेंडिचर के लेजर को जानेंगे कि एक्सपेंडिचर मतलब लेजर जो होते हैं हमारे, जो लेजर क्रिएट करेंगे हम टेली पे आज, उसका क्या नेचर होता है, किस ग्रुप के अंदर वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम इस थोड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे, हमने टेली सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें थोड़ी थ्योरिकल नॉलेज होनी चाहिए कि हम टेली पे लेजर क्रिएट कर पाए, तो उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो एक्सपेंडिचर आप सभी डिस्प्ले पे देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू अर्न इनकम और रन ऑपरेशंस। तो एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट होता है जो खर्च किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को इनकम अर्न करने के लिए, बेसिकली बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने के लिए। इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन कैश, वो कैश को कम करता है। देखो आप अगर एक्सपेंडिचर करोगे, आप खर्चा करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कैश खत्म होगा, कहीं ना कैश आपका रिडक्शन होएगा, ठीक है ना। तो कैश को रिडक्शन करता है और इंक्रीज करता है लाइबिलिटी के अंदर। जैसा आप सभी ने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, हमें फ्यूचर में किसी को देना है, वी नीड टू पे समथिंग टू द पर्सन, इट इज आर लाइबिलिटी। हमें किसी को कुछ देना है अभी नहीं तो बाद में, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। हमें किसी से पैसा फ्यूचर में लेना है, वो हमारे लिए एसेट है। किसी को पैसा देना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, किसी से पैसा लेना है वो हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब हम खर्च करते हैं तो बेसिकली हमें किसी ना किसी बंदे को पैसा देना होता है, तो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है और हमारे कैश को कम कर देता है। बाकी दूसरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन टैली। टैली के अंदर एक्सपेंडिचर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सॉरी फॉर ऊपर। इंटरप्टिंग मिस्टर विक्की गौतम, आई थिंक जो पीपीटी है उस पे कुछ पैचेस से दिख रहे हैं। अगर इफ यू कैन रीस्टार्ट द पीपीटी। ओके ओके। आई थिंक एक बार विंडो को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लीजिए। अब आ रहा है, विजिबल है, विजिबल है अब। क्या है, बट फिर भी ऊपर की ओर पैचेस हैं, चलेगा। हाँ ऊपर तो वैसे कुछ है नहीं हमारा कंटेंट, वो डिस्प्ले का ऑप्शन दिखा रहा है, वैसे है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ हम कहाँ पे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन टैली। टैली के अंदर जो एक्सपेंडिचर के जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली, वो किस तरीके से होता है, तो आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, ममता जी की क्लास में हमने सभी ने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक साल से ऊपर अवधि के लिए होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट। एक साल से कम वाले के लिए क्या होता है, उसके लिए नहीं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ऊपर जिसका हम उपयोग करते हैं, दैट इज फॉर लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी, जो हम मशीनरी परचेज करते हैं, फर्नीचर अगर हम बना रहे हैं, कोई ना कोई मशीनरी हम उसके अंदर यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर को काटने वाली मशीन हो गई, पॉलिश वाली मशीन हो गई। ये मशीनें जो होती है इनकी अवधि, इनकी जो जो लाइफ होती है वो मोर देन वन ईयर होती है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए होता है। तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये किस हेड में आते हैं, ग्रुप देखो लिखा हुआ ग्रुप फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, फिक्स एसेट बन जाते हैं, मतलब ये हमारे लिए एसेट हमारे बिजनेस में फिक्स्ड है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज मोर देन वन ईयर।
ये मोर देन 1 ईयर ही होते हैं, लेस देन 1 ईयर होंगे तो फिर ये आपके फिक्स एसेट में नहीं आएंगे, फिर ये आपके एज ए एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएंगे। 1 साल से ऊपर के लिए इनकी लाइफ होती है, दैट इज वाई दे आर कवर्ड अंडर द फिक्स एसेट। अफेक्टिव बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। बैलेंस शीट को अफेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही हम एसेट परचेज करते हैं तो हमारे एसेट इंक्रीज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में अफेक्ट करता है हमारे, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली इज अ डेली बिजनेस एक्सपेंसेस। एग्जांपल के लिए रेंट, जैसे हम आपको भी मैंने उस पहली क्लास में बताया था कि हम जब भी बिजनेस को रन करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के खर्चे आते हैं, उसमें से एक खर्चा होता है आपका रेंट। क्योंकि जो आपने शॉप अपने लिए ली है, जिसमें आप बिजनेस चलाओगे रन करोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो किराया होगा वो आपको देना ही होगा ना। तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, अफेक्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो लॉस है। कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से जो रेंट दे रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है। तो जब एक्सपेंडिचर होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। इससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। ये सारे एग्जांपल आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब टैली में क्रिएट करेंगे ना तो हम सब इसी का रेफरेंस लेके सारे लेजर क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको काम आएंगी आगे जब हम टैली में लेजर क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल्स के, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। एक्सपेंसेस दैट रिजल्ट इन एक्विजिशन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी हमारी एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर वाली होती है। और टैली के अंदर ग्रुप में किस ग्रुप में आता है, जो भी हम ऐसा मशीनरी जो भी आता है एग्जाम्पल पिछले में, जो मशीनरी हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं, तो किस में काम आती है, वो हमारे फिक्स एसेट के हेड में आती है टैली के अंदर, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच इज मेंशन द डिस्प्ले, यू कैन सी मशीनरी परचेज। तो आप मशीनरी परचेज करते हैं, वो आपके लिए फिक्स एसेट है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है बिजनेस रन करने के लिए, वो आपके लिए क्या है, एक फिक्स एसेट है। कंप्यूटर्स, आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं ना कहीं किसी अकाउंटेंट को रखोगे। उस अकाउंटेंट को काम करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जो कंप्यूटर वो अकाउंटेंट यूज कर रहा होगा, जो मालिक जो ओनर होगा वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा होगा। दे ऑल आर फिक्स एसेट फॉर द कंपनी। वो सब क्या है, एक फिक्स एसेट कंपनी की है, क्योंकि आप सभी को पता है लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो वो 1 साल में खराब नहीं होता। उसकी लाइफ कम से कम 5 साल तो होती ही होती है, ठीक है ना। बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर इज ऑल्सो अ फिक्स एसेट, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, जो फर्नीचर होते हैं एक्सपेंसिव फर्नीचर होते हैं, वो 1 साल तो चलते नहीं है, वो मोर देन 1 ईयर्स की उनकी लाइफ होती है। तो उनके लिए फिक्स एसेट बन जाते हैं। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की विद एग्जांपल्स की बात करें तो डेफिनेशन अगर देखें तो डेली ऑपरेशंस एक्सपेंसेस दैट डू नॉट क्रिएट एसेट्स। ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपकी एक एसेट को क्रिएट नहीं कर रहे, जो 1 साल से अवधि से ऊपर वाले के लिए एसेट नहीं है, वो अभी खर्च किया और अभी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मंथली एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल जैसे प्रिंटिंग के खर्चे। जैसे आप लोग स्टेशनरी परचेज करते हो, आपने पेपर्स खरीदे, तो पेपर क्या होते हैं, जो प्रिंट आउट्स के पेपर होते हैं वो विद इन अ वीक खत्म हो जाते हैं वो खर्चे। रेंट क्या है, महीने महीने खर्चा होता है, ठीक है ना। ये सारे खर्चे क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब बार बार खर्चे होते हैं। और ना ही हम ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं जो हमारी जो वैल्यू है उसकी 1 साल से ऊपर हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल के लिए बात करें, अब आप इसको टेली ग्रुप देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लगते हैं, जो आपके प्रोडक्ट में डायरेक्ट खर्चा होता है। कोई भी खर्चा से डायरेक्ट खर्चा हो ना, तो वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और कहीं वो ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली नहीं लग रहा बिजनेस के ऊपर, जो प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, तो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सबसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए पेन हो गई आपकी। पेन ले लो या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे पेन ले लो। आप पेन ले लो, एक प्लास्टिक का पेन होता है। प्लास्टिक के पेन के अंदर जो उसका कवर होता है, उसका जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो उसके अंदर रिफिल होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। जो उसमें इंक होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और जो इम्प्लॉइज उस पेन को कैप को लगा के बना रहे हैं, जो उसको असेंबल कर रहे हैं बेसिकली पेन को, वो इज ऑल्सो अ एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। बट जिस फैक्ट्री में ये पेन बन रहा है, उस फैक्ट्री के नीचे से एक आपका अकाउंटेंट बंदा बैठा हुआ है। तो अकाउंटेंट की जो सैलरी मिल रही है उसको, जो कंप्यूटर पे काम करने की मिल रही है, उसका कोई भी ऐसा फर्क है जो उस पेन पे नहीं लग रहा।
वो उस कोर्स उसकी पेन से रिलेटेड तो है ही नहीं उसका खर्चा, उसका तो कंप्यूटर से रिलेटेड खर्चा है। वो अपने अकाउंटिंग कर रहा है और अपनी सैलरी पा रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो लेबर काम कर रहे हैं पेन के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो वो पेन पे जो सारे खर्चे लगेंगे वो सारा आपका डायरेक्ट खर्चा होगा। जो पेन के अलावा जो खर्चे लग रहे हो, सिक्योरिटी का खर्चा मान लो, जो सिक्योरिटी का खर्चा, जिस बिल्डिंग में काम हो रहा है उसके नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड भी तो बैठा होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड का पेन से क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। और जिसका पेन से कोई लिंक नहीं है वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया कंपनी के लिए। और जिसका कोई भी किसी का भी फोर्स या फिर उस चीज की डायरेक्ट जो उसका इफेक्ट अगर वो पेन पे पड़ रहा है वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सीधी बात। सिक्योरिटी गार्ड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पेन पे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे रेंट का खर्चा हो गया। रेंट के खर्चे से पेन के खर्चे से कोई मतलब ही नहीं है। तो रेंट का खर्चा क्या हुआ, डायरेक्टली पेन पे नहीं लग रहा, कहीं ना कोई कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इसे एग्जांपल में आप नीचे देख रहे होंगे वेजेस। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। क्योंकि वेजेस किसको मिलता है? जो लेबर होते हैं, जो भत्ते पे काम करते हैं, जिनकी दिहाड़ी होती है, कि भैया उनको है ना पर पीस उनको चार्ज मिलता है। आप एक दिन काम करेंगे 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। आप 4 पीस बनाएंगे तो 400 रुपये मिलेंगे, एक पीस पे 100 रुपये। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर पेन की बात करो तो एक पेन पे 2 रुपए इस तरीके से मिलता होगा। तो उनको क्या होता है, पीस वाइज उनको सैलरी मिलती है। तो उनकी सैलरी विल डिपेंड ऑन हाउ मच दे आर मैन्युफैक्चरिंग द क्वांटिटी ऑफ द पेन, या फिर कुछ भी जो बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे बेस करता है उनका कितना पैसा उनको मिलने वाला है। आप सभी अपने आसपास में देखते होंगे कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स का काम होता है। जैसे जो लेडीज होती है सूट में, उनको कुछ कागज का काम होता है, पेन वो मतलब वो बटन्स लगाने होते हैं, टैग लगाने होते हैं। इस तरीके का काम क्या होता है, उनको क्या होता है, उनको पीस के हिसाब से पैसा मिलता है। हर एक कपड़े पे 2 रुपए, हर एक कपड़े पे 1 रुपए, इस तरीके से मिलता है। मतलब डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड वेजेस। लेकिन वही जिसकी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं है, जैसे अकाउंटेंट है, मेरे फैक्ट्री में कितना भी शर्ट बन रहा हो, मेरे फैक्ट्री में कितनी भी पेन बन रही हो, अकाउंटेंट को क्या मतलब है? उसको अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसको खर्चे उसको अपनी सैलरी लेनी है, तो उसको बोलते हैं सैलरी। वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो वेजेस होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। आई थिंक नाउ इज क्लियर। और बात करते हैं एग्जांपल में, आप और देख रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रेंट भी आ रहा है आपका, दूसरा सैलरी भी आ रहा है। सैलरी मैंने बताई थी आप लोगों को, जो अकाउंटेंट वाली सैलरी होती है, जो सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो एडमिन वाले ऑफिस वालों की काम की सैलरी होती है, वो सारी आपकी सैलरी होती है, वो वेजेस नहीं होते। और तीसरा आपका दिख रहा है एडवर्टाइजिंग। क्योंकि एडवर्टाइजिंग से कुछ होता नहीं ना, लिंक प्रोडक्ट पे थोड़ी लग रहा है एडवर्टाइजिंग का, मतलब एडवर्टाइजिंग में कुछ थोड़ी पेन के अंदर कुछ लगा रहे हो आप। तो पेन में थोड़ी दिख रहा है वो कुछ कि एडवर्टाइजिंग में ये चीज लगी है पेन के अंदर, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजिंग तो एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है, जो बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। ठीक है ना? जहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? यस नो तो बताओ, कम से कम यहाँ नो हाँ ना तो बोलो। आप कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? सब मैसेज मारे सबके नो 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 सब, मतलब क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप एक्सपेंसेस इन टैली। तो टैली में किस तरीके से हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, किस किस हेड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा अभी हमने पिछला ही पढ़ा था, सेम वही और फैक्टर्स है, एक्सपेंस के नाम और टैली का कौन सा ग्रुप यूज होगा, इन खर्चों को किस ग्रुप में डालेंगे टैली में, ये सब ये ध्यान से लिखना आप लोग। अभी मैं टैली में जब लेजर क्रिएट करूंगा ना, तो यही सब मैं आपसे पूछूंगा कि एक फर्नीचर है वो किस में जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा फिक्स एसेट में जाएगा सर। इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा? इंटरनेट एक्सप्रेस में जाएगा सर। रॉ मटेरियल किस में जाएगा सर? परचेज का पार्ट है वो, तो परचेज में जाएगा। ये चीजें भी आपसे पूछूंगा मैं, आप लोग ध्यान से देख लो, यही चीज अभी आने वाली है टैली के अंदर। तो सबसे पहले एक्सपेंस का नाम देखते हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर का परचेज किया, अभी हमने फर्नीचर पढ़ा पिछली क्लास में, अभी पिछले कुछ देर पहले ही, तो हमारी फिक्स एसेट का पार्ट है। रेंट, रेंट हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ये फर्नीचर परचेज एक नॉर्मल बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो बिजनेस है मन्नत फर्नीचर, उसमें हमारे लिए जो फर्नीचर है वो हमारे लिए एसेट नहीं है, उसमें हमारे लिए वो स्टॉक है, हमारे लिए वो गुड्स है। क्योंकि हम काम ही फर्नीचर का करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे लिए एसेट नहीं है।
जैसे क्या होता है, कोई भी कंपनी हो, अब जैसे मान लो जो एसी की कंपनी है, एग्जांपल के लिए ब्लू स्टार ले लो आप, ब्लू स्टार, डेक्कन, कोई सी भी कंपनी ले सकते हो। अगर वो किसी बिजनेस वाला कोई अपना अपने लिए एसी परचेज कर रहा है, तो वो उस बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट। लेकिन वही जो एसी की कंपनी है जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे आपकी कंपनी वो चीज की है, जैसे मेरी कंपनी मान लो एसी बनाने की है, तो मेरे लिए एसी कोई फिक्स एसेट नहीं होगा, एसी मेरे लिए परचेज होगा। ठीक है ना, परचेज मतलब स्टॉक होगा मेरे लिए वो, क्योंकि मैं उसको लेके फिर बेचता हूँ आगे। और फिक्स एसेट उसी को कहते हैं जिसमें हम बेचते नहीं है, हम उसको यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, हमें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव होता है कि हम इस एसी को लगाएंगे अपने बिजनेस में और उसको हम कम से कम 3-4 साल तक यूज करेंगे। वो हमारा अलग मोटिव होता है। ठीक है ना। तो फिक्स एसेट इज बेसिकली फॉर यूजिंग मोर देन 1 ईयर। बट इन केस अगर आप काम ही उसी फिक्स एसेट का करते हो, तो वो आपके लिए स्टॉक परचेज कहलाएगा। ठीक है ना, ना कि वो फिक्स एसेट आपके लिए होगा। बाकी बात करते हैं रेंट। अभी आपने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉ मटेरियल, कोई सा भी रॉ मटेरियल, आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि जो परचेज होता है उसमें 3 तरीके के स्टॉक हम डालते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा हमारा फिनिश गुड्स। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। लेकिन वही अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग में तो हम सीधा गुड्स को परचेज करते हैं और गुड्स को सीधा बेच देते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो ट्रेडिंग कहलाता है। हमने गुड्स को परचेज किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और दूसरे आदमी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता था, मैंने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर मैंने कुछ काम कराया, अपने एम्प्लॉय से बोला कि ये चीजें करो, वो चीज करो, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसके बाद उस रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स तैयार किया और उस फिनिश गुड्स को मैंने मार्केट में बेचा। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। वेजेस की बात करें, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जैसा अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, लेबर की जो सैलरीज होती है। प्रोफेशनल फीस। अब प्रोफेशनल फीस में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, कुछ भी हो गया, उनको उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होता है, टैक्स ऑडिट की फीस देनी होती है, कंप्लायंस, जीएसटी के कंप्लायंसेस होते हैं, टीडीएस के कंप्लायंसेस होते हैं, तो उन लोगों को उसकी फीस देनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होती है, वकीलों को देनी होती है, कहीं ना कहीं लीगल फीसेज होती हैं, कहीं ना कोई डिस्प्यूट हो गया कंपनी का, किसी कंपनी ने किसी ने किसी पे केस कर दिया, तो वो जो सारे चार्जेस है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल चार्जेस। तो वो प्रोफेशनल चार्जेस कंपनी में जरूर होते हैं। ठीक है ना। तो वो प्रोफेशनल चार्ज हमारे क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, बट कभी कभी खर्च हो जाते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, हमारा पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। नाउ हम पढ़ने वाले इनकम हेड इन टैली। टैली के अंदर इनकम हेड क्या होता है। एक्सपेंडिचर हेड तुमने काफी पढ़ लिया, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया। नाउ हमें पढ़ना है हेड इनकम। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें इनकम से रिलेटेड, तो मनी रिसीव फ्रॉम सेल और सर्विसेज। हमने किसी को कुछ सेल किया और या सर्विस दी, वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए वो इनकम होगी, वो हमारे लिए पैसा, हमें एक तरह से रेवेन्यू होगा, हमारे लिए सेल्स होगी। अब एग्जांपल अगर अमन अमन फर्नीचर वाले का ले, अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो अमन ने कोई फिनिश गुड्स बेचा मार्केट में जाके, सोफा बेचा, डबल बेड बेचा, वो उसके लिए क्या होगा, सेल्स हो गई, तो वो उसके लिए इनकम है। किसी पार्टी ने बोला हमारे पास रॉ मटेरियल है, आप अपने कुछ इंप्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास भेज दो, वो उस फर्नीचर से, वो उस रॉ मटेरियल से यहाँ पे हमारे यहीं पे एक फर्नीचर बना देगा। तो वो क्या होगा, आप अपने इंप्लॉय को दूसरे के पास भेज रहे हो, एज अ सर्विस दे रहे हो, वो आपके लिए क्या होगा, वो सेल्स हो गई। ठीक है ना। आपने डायरेक्ट गुड्स बेचा, वो आपका गुड्स सेल हो गया। आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की किसी को, वो आपके लिए सर्विस में कैटेगरी में आ गई, वो आपकी इनकम इनकम में आ गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इनकम भी 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ये होता है कि जो आपका कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस का मतलब क्या, जो आपका मेन बिजनेस है। ठीक है ना। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो अमन फर्नीचर वाला एग्जांपल ले लो। अमन का कोर बिजनेस क्या है। अमन का कोर बिजनेस ये है कि उसको रॉ मटेरियल लेके एक फिनिश गुड्स तैयार करना होता है, वो लकड़ी खरीद के लाता है, उससे चेयर बनाता है, डबल बेड बनाता है, फिर मार्केट में बेच देता है। उसका कोर बिजनेस तो यही है कि फिर फर्नीचर बेचना है और उससे मुझे पैसा जनरेट करना है, मुझे उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, वो उसका कोर बिजनेस है। तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। उससे जो पैसा आएगा उसको फर्नीचर बेचने से, वो उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम होगा। और वही दूसरी बात करें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये हुआ, कुछ ऐसा पैसा उसके पास आ रहा है जो उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल, उसने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, उसने अपने कंपनी के नाम से एक एफडीआर जनरेट करवा रखी है बैंक के अंदर, और उस एफडीआर के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। उसका तो एफडीआर से कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही फर्नीचर का है, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी। इनकम तो है लेकिन डायरेक्ट इनकम नहीं है, उसके लिए वो इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी। ठीक है ना।
तो डायरेक्ट इनकम इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कोर बिजनेस, इनडायरेक्ट इनकम इज नॉट रिलेटेड टू योर कोर बिजनेस। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या होगा, सेल्स अकाउंट या फिर डायरेक्ट इनकम दैट इज सेल ऑफ गुड्स। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो इनडायरेक्ट इनकम एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रिसीव, आपने किसी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने किसी को लोन दिया, अपने फैमिली में किसी को भी लोन दिया, उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, ब्याज का पैसा कमा रहे हो। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपका काम लोन देना तो है नहीं, आपका काम तो फर्नीचर बनाना है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू योर कोर बिजनेस। समरी की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर के ऊपर, जैसे आप सभी काफी अब तो इतनी बार मैं बोल चुका हूँ एक्सपेंडिचर इनकम आप लोगों को तो रट ही गया होगा, क्योंकि मुझसे पहले वाली जितनी भी 6 क्लासें हुई हैं उन सब में उन सभी ने आपको एक्सपेंडिचर और इनकम रेवेन्यू के ऊपर कितने बार चीजों को बता दिया है। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ मनी। जब भी आप खर्चा करोगे, जब भी आप कपड़े खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका पैसा जाएगा ना, आपके पास आउटफ्लो होगा, तो कैश जा रहा है आपके पास, ठीक है। कैपिटल, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इट कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं करेक्ट ग्रुपिंग इन टैली एंश्योर एक्यूरेट अकाउंटिंग। और आपकी जो जो भी ग्रुपिंग होती है, जैसा भी ग्रुपिंग हम पढ़ रहे थे ना कि रॉ मटेरियल किस में आता है, परचेज में आता है, रेंट किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो इस तरीके से जो भी खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे आपको सही हेड में डालने होंगे। अगर आप सही हेड में नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट अकाउंटिंग आपकी नहीं होगी, गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू डालेगा उसने पीएनएल में। जो कैपिटल होती है, जो अमन जो पैसा लगा रहा है, जो कैपिटल लगा रहा है, जो हमने पढ़ा था पहले, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट में आता है। और रेवेन्यू क्या आती है, जो सेल्स होती है, जो गुड्स बेच के हमने सेल करी, उसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। और रेवेन्यू कहाँ पर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है, जो सेल्स की फिगर होती है। एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर कंप्लायंसेस। और कंप्लायंसेस के लिए हमारा जो भी क्लासिफिकेशन होता है, जो भी हमने करा कि वो फिक्स एसेट में आएगा, डायरेक्ट खर्चे में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो हमारे कंप्लायंसेस हो गए, और कंप्लायंसेस ठीक से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कैलकुलेशन होती है वो टर्नओवर के बेसिस पे होती है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। किसी भी बिजनेस की टर्नओवर मतलब होता है उस कंपनी की सेल्स कितनी है, ठीक है ना, पूरे साल की, उसको बोलते हैं टर्नओवर। जैसे आप सुनते होंगे मार्केट में इस कंपनी की टर्नओवर तो इतने 1,000 करोड़ है, मतलब उसकी सेल्स उतनी है पूरे साल में। बाकी इसके बाद हमारी पीपीटी वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है। जो पीपीटी वाला पार्ट था वो हमारा खत्म हो चुका है। लेट्स गो टैली, लेट्स गो फॉर द टैली, ठीक है ना। अगर आपको अभी तक थ्योरी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम टैली पे चलने वाले हैं। तो आप कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क, देन हम चलेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, और जो भी हमने सीखा उसको हम जाएंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में टैली में करेंगे। तो किसी को डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, नो डाउट। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट बता दीजिए, अदरवाइज भी हम आगे चलेंगे। सबका मैसेज आ रहा है, नो सर नो सर। आई थिंक डाउट ही नहीं है। नो, नो सर नो सर। ओके ओके, चलो फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। या तो हम स्टार्ट करते टैली। तो आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने टैली पे एक कंपनी क्रिएट करी थी, दैट इज मन्नत फर्नीचर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हु गाइस, जिसने उन्होंने मन्नत फर्नीचर कंपनी टैली में बनाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने टैली पे जाके प्रैक्टिस किया, और काफी अच्छा लगता है जब आप लोग ट्राई करते हो, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है। और कई सबका रिस्पॉन्स भी आया था, मैंने भी नाम भी ले सकते हैं, उन सबने ही टैली पे कंपनी बनाई थी मन्नत फर्नीचर। हाँ, 2-3 की फर्नीचर की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, जो कि मैंने उन्हें बता भी दिया था। बट नो डाउट, नो डाउट उन्होंने हेल्प मेहनत करी, तो वेरी गुड। अब चलते हैं टैली के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो डाटा था हमने वो डेस्कटॉप पे बनाया था, SRS टैली डाटा है, ठीक है ना। तो ये डाटा हमारा बना हुआ है कल वाला। अब इस कल वाले डाटा पे ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। डाटा खोलने का तरीका क्या होता है टैली में, तो टैली का बेसिक सब आप कल बात सैटरडे वाली क्लास में सभी कुछ आप जान चुके थे। अब हम शुरू कर रहे हैं उसका अगला बढ़ाव, दैट इज लेजर क्रिएशन। तो जब भी आपका डाटा जो आपको मैंने दिखा रखा था कि मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो रखा था SRS डाटा करके, तो अब उस डाटा को मैंने ओपन किया, आपके सामने देखो डाटा दिख रहा है 100,000। ये हमारा टेली का डाटा है, ठीक है ना। ये डाटा हमारा अपनी कंपनी का सेव है। अब खोलने के लिए सबसे पहले उसके पाथ, जो ये ऊपर दिख रहा है ना, स्टार्ट बैकअप और ये करके पाथ दिख रहा है, इसके पाथ को, जो रास्ता है ना, इसका लोकेशन, उसको कॉपी करना होता है। कंट्रोल C, कंट्रोल C जो कॉपी कर लो। उसके बाद मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आ जाओ, एंड देन अपनी टैली को ऑन करो, ठीक है ना।
तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, जैसा हमने कल भी बताया था, चार ऑप्शन खुल जाते हैं: एजुकेशन मोड, लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है ना। तो अभी हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। ओके। जब लाइसेंस होगा तो लाइसेंस वाले पे करेंगे, जब नेटवर्क से होगा तो नेटवर्क से करेंगे। ठीक है ना। अभी हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, हम एक एजुकेशन मोड के लिए काम करें, तो हम एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने एजुकेशन मोड पे ओके किया। ओके करते ही देखो आपके पास एक ऐसे डिस्प्ले खुल जाएगी, जैसे कल भी खुल रही थी, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ। तो कभी आपने पाथ कॉपी किया था, अभी बताया ना मैंने, पाथ कॉपी कर डाटा का। तो सिंपली आपको जाना है स्पेसिफाई पाथ वाले पे, करना है एंटर। तीसरे वाले पे देखो ये आ रहा ना आपका, ये रहा स्पेसिफाई पाथ, ये इस पे आपको जाके करना है एंटर। और जो आपने लोकेशन अभी कॉपी करी थी, उस लोकेशन को आपको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, दैट इज कंट्रोल वी। ठीक है ना। तो एंटर करते आपको फिर एंटर प्रेस करना है लोकेशन को डालते ही। जैसे आप एंटर करेंगे आपकी कंपनी आपके सामने शो हो जाएगी, जो आपने कल बना रखी थी। तो मन्नत फर्नीचर आप सबके सामने खुल चुकी है कंपनी। उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी खुल जाएगी। तो कंपनी खुलने का सिस्टम तो यहाँ तक ओके है। ठीक है ना। अब हाँ, पिछली क्लास में कल कई स्टूडेंट थे जो 10 बज चुके थे, लेट हो चुका था काफी क्लास को, तो लोग पूछ रहे थे कि सर पासवर्ड कैसे लगाते हैं और ये चीजें कैसे होती है। तो कल टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम इसलिए हम उसको दोबारा नहीं कर पाए। बट हाँ, अभी आज बताता हूँ पासवर्ड कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। तो पासवर्ड लगाने का सिंपल तरीका है। सिंपल आपको देखो लेफ्ट साइड में, जैसे जैसे हमारे कल प्रदीप मल्होत्रा, सैटरडे को प्रदीप मल्होत्रा सर ने पूछा था ना, कंपनी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो वही सेम ऑप्शन वहीं पे कंपनी वाले पे क्लिक करना है। देखो लेफ्ट साइड में कंपनी का आ रहा है ऑप्शन, उस कंपनी पे क्रिएट करेंगे ना, तो आपको दिखेगा नीचे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी से नीचे दिखेगा टेलीवोल्ट। टेलीवोल्ट मतलब होता है कि आप ऐसा पासवर्ड लगा दो कि पूरी आपकी कंपनी तभी खुलेगी जब आप वो पासवर्ड डालेंगे। उस पासवर्ड के बिना आपकी कंपनी नहीं खुलेगी कभी। ठीक है ना। तो हम जा रहे हैं सेकंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड टेलीवोल्ट। ये सब देख सकते हैं आप, टेलीवोल्ट। अब टेलीवोल्ट पे जाते से आपको सीधा एंटर करना है, और एंटर करते हुए पूछेगा कि टेलीवोल्ट का जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो, इनक्रिप्टेड करना चाहते हो अपनी कंपनी को, तो उसके उसने बोला कौन सी कंपनी करना चाहते हो इनक्रिप्टेड। मैंने कहा मेरी मन्नत फर्नीचर में पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो मैंने मन्नत फर्नीचर ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास कंपनी ढेर सारी कंपनी बनी होगी, मतलब मान लो 10 कंपनी बनी है आपके टैली में, तो 10 की 10 कंपनी आपके सामने लेफ्ट राइट साइड में लिस्ट में आ जाएगी। और जिस कंपनी में आपको पासवर्ड लगाना है उस पर सीधा क्लिक करना और पासवर्ड लगा देना। तो अभी हमारे पास एक ही कंपनी है, मन्नत फर्नीचर, तो वही शो हो रहा है, मन्नत फर्नीचर। मन्नत फर्नीचर में आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर वो पूछेगा आपसे पासवर्ड डालने के लिए। ठीक है ना। तो अभी के लिए आप सभी के लिए पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड डाला। फिर मैंने एंटर किया, उसने बोला दोबारा कंफर्म करो पासवर्ड को। फिर दोबारा आप 1 2 3 4, फिर से आप 1 2 3 4 डालो, एंड देन फिर एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट, यस। उसने क्या बोला, दिस विल क्लोज ऑल द रिपोर्ट्स, कह रहा है कि ये सारी फाइलें आपकी रिपोर्ट को बंद कर देगा। वाउचर्स आप नहीं देख पाओगे, मास्टर्स आप नहीं देख पाओगे, विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड। आर यू श्योर वांट टू सेट द टेलीवोल्ट पासवर्ड। वो कह रहा है अगर पासवर्ड भूल गए तो आप ये चीजें नहीं देख पाओगे। तो क्या आप कंफर्म करना चाहते हो? ऑब्वियसली यस। उसने बोला क्या आप एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं कंपनी की, क्योंकि इसको भी पता है कि कल को मैं पासवर्ड भूल गया, कहीं कंपनी डूब, कंपनी का पासवर्ड भूल गया, तो कंपनी का मैं पासवर्ड भूल गया, कहीं दिक्कत हो जाएगी, मैं डाटा ना उड़ जाए। तो वो मुझे बैकअप के लिए पूछ रहा है कि क्या आप कॉपी बनाना चाहते हैं डाटा की कंपनी की। तो वैसे जब आप कभी बड़ी कंपनी में काम करो तो ऑब्वियसली आप एक कॉपी बना के रख लो, बट अभी मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को नहीं बनाना, तो मैं नो प्रेस कर दूंगा, एंड नो, एंड प्रेस कर दूंगा। ठीक है ना। अब इसने देखो जैसे ही मैंने नो प्रेस करा, इसने सीधा मुझसे पासवर्ड पूछा। अब अगर अब बिना पासवर्ड के मेरी टैली नहीं खुलेगी। अब देखो मैं 1 2 3 4 डाला मैंने, अब मैं ओके करूंगा मेरी टैली खुल जाएगी। ये देखो मेरी टैली खुल चुकी है। अब टैली को बंद करते हैं। पहले बंद करने का तरीका क्या था, एस्केप करके कुट यस वाई प्रेस कर दो, ये टैली मेरी बंद हो गई। फिर आते हैं हम अपने डाटा टैली को, डाटा डाटा खोलते हैं, और ये रही हमारी लोकेशन, जैसे ऊपर देख रहे हैं आप। फिर मैं लोकेशन को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और फिर मैं खोलता हूँ टैली को। ठीक है ना। फिर मैं टैली पे आ गया, और मैंने फिर से दोबारा टैली ऑन करी। अब देखते हैं हमारी टैली में पासवर्ड लगा है या नहीं लगा है। फिर से कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, कंट्रोल वी से थर्ड वाले ऑप्शन स्पेस में पाथ में जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे, फिर एंटर करेंगे, आपकी कंपनी दिख गई। और आपकी वो कंपनी में नजर भी नहीं आ रही है, मतलब आपकी कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है इस बार, क्योंकि पासवर्ड लगा हुआ है ना टेलीवोल्ट। फिर आप एंटर करेंगे, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। 1 2 3 4, ये मेरी टैली ओपन हो गई, इसका मतलब मेरे कंपनी में पासवर्ड लग गया।
मेरे अलावा उस फाइल को कोई नहीं खोल सकता, जिसको पासवर्ड पता होगा वही खोल सकता है आप टैली, ठीक है ना। आपकी जो टैली है वो इनक्रिप्टेड हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पासवर्ड लगाना। किसी को किसी में डाउट तो आप पूछ सकते हैं। पासवर्ड वाला भी आपको जो डाउट आ रहा था कल, वो भी क्लियर हो गया अब। और हाँ, अगर किसी को हटाना तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। कंपनी पे जाएंगे, टैली वोल्ट पे जाएंगे, मन्नत फर्नीचर पे जाएंगे, ओल्ड पासवर्ड जो आपका था 1 2 3 4 डाल दीजिए, और पासवर्ड में कुछ मत डालिए, ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड डल जाएगा। ब्लैंक कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। ये देखो क्या बोल रहा है, मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द एनक्रिप्शन फ्रॉम योर कंपनी डाटा। कह रहा है अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका कंपनी का डाटा हट जाएगा, पासवर्ड हट जाएगा, मतलब आपको कोई पासवर्ड रहेगा ही नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चाहता यही हूँ, तो मैंने एंटर कर दिया। यस, नो, ठीक है ना, मेरे कंपनी का डाटा का पासवर्ड हट चुका है। अब चलते हैं लेजर क्रिएशन पे, ठीक है ना। हाँ, तो अब आप लोग नोटपैड निकाल के रखे होंगे, तो अब नोटपैड वाला आप लोगों का काम स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले जब भी टैली ऑन करो, तो सबसे पहला काम होता है अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करो। आप स्टेप लिख सकते हो अपने नोटपैड पे, अगर आप सब नोटपैड लिख रखे हैं, तो ये सारे स्टेप ही कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आवर में आएंगे जब आपका टेस्ट होगा। इसलिए आप सभी को पता है कि कैसे इंसेंटिव मिलेगा हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप नोट करना, ये सारी कौन कौन सी की बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जब भी आप टैली ओपन करोगे, सबसे पहले आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस साल में काम करना है टैली के अंदर। तो उसके लिए आपकी जो की होती है उसको लिखो आप ओल्ट F2। ओल्ट F2 से क्या होता है, डेट सेलेक्ट होती है कि किस पीरियड में आपकी टैली काम करने वाली है। ओल्ट F2 से क्या होता है, पीरियड सेलेक्ट होता है। तो हमारा पीरियड क्या है, 1 4 25, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 2026। ये मैंने खोल लिया, अब मेरा इस डाटा का कंपनी डाटा खुल चुका है। अब आते हैं लेजर क्रिएशन में, ठीक है ना। और हाँ, लेजर क्रिएट करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं किसी डाटा में, तो हमें देखना होता है कि हमारे इस डाटा में कितने सारे लेजर पहले से बने हुए हैं। अभी तो आप सबको पता है भी, हमने एक भी लेजर क्रिएट नहीं करा है टैली के अंदर। तो लेजर अब पहले से कोई एग्जिस्टिंग लेजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे डिस्प्ले पे। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे सबसे लास्ट में, थर्ड लास्ट आप देखोगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, थर्ड लास्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे करेंगे एंटर। कर दिया आपने एंटर, थर्ड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि लेजर कोई क्रिएट है कि नहीं टैली के अंदर। डिस्प्ले आपने कर दिया। उसके बाद हमें किस पे जाना, अकाउंट्स की बुक्स पे, क्योंकि हमें लेजर देखना तो ऑब्वियसली अकाउंट बुक्स देखनी पड़ेगी। तो डिस्प्ले मोर रिकॉर्ड्स के बाद आता है आपका ऊपर से 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट, अकाउंट्स बुक्स। देखो आगे ए हाईलाइटेड भी है, अकाउंट्स बुक्स। उसके बाद हमको क्या देखना, लेजर, क्योंकि हमने लेजर कितने क्रिएट कर रखे हैं पहले से। तो अब मैंने तो एक भी लेजर क्रिएट नहीं करा है, तो मैं जस्ट चेक करने जा रहा हूँ कि मेरे टैली में कोई लेजर क्रिएट दिख रहा है पहले से कि नहीं दिख रहा है, मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा आता है लेजर को शो करने के लिए कि मेरा कोई लेजर बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ। एंटर किया, देखो 2 लेजर। टैली में हमेशा ऑटोमेटिक 2 लेजर हमेशा ही एग्जिस्टिंग बने होते हैं, जिसको हमें बनाना कभी नहीं पड़ता। दैट इज फर्स्ट कैश, कैश का लेजर आपको कभी बनाना नहीं पड़ता। और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो ऐसे हेड होते हैं, लेजर होते हैं, जो हमेशा टैली के अंदर बने होते हैं, उसमें आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, अब चलते हैं एंट्रीज करने के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे को दिख रहा है कि 2 लेजर बने हुए हैं। अब एस्केप से हम बैक जाएंगे, एस्केप, 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 ठीक है ना। और इसी को जैसे अभी मैंने बताया, डिस्प्ले देखो, अकाउंट बुक्स में जाओ, फिर लेजर में जाओ, फिर आपके सामने वो दिख जाएगा, फिल्टर टाइप, कि आपको क्या सर्च करना है उसके अंदर, ठीक है ना। इसकी शॉर्टकट की होती है DAL। नोट पर तो लिख लो, ये पूछिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन आर के अंदर, कि जब भी कभी किसी लेजर को देखना है कि कितने लेजर हैं आपके किताबों के अंदर, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो DAL, ठीक है ना। देखो सबसे पहले डी प्रेस करा मैंने, डी फॉर दिस डिस्प्ले मोड रिपोर्ट डी। उसके बाद ए फॉर अकाउंट्स बुक्स, और फिर एल फॉर लेजर। यस, दिस वन, DAL इज a shortcut key to see how much ledger already created in your tally account। तो escape से बैक होता है, फिर से DL करें, DAL, ठीक है ना, खुल गया ना। तो ये शॉर्टकट की होती है, DAL से लेजर देख सकते हैं हम लोग। बाकी अब हम लेजर क्रिएट करना शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो जब भी कभी क्रिएट करेंगे, आप सबके सामने डिस्प्ले पे खुद ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही है क्रिएट, पहला ऑप्शन ही है क्रिएट।
तो क्रिएट पे जाके आपको सीधा एंटर करना है। देखो आप सबके सामने ना एक, जहां पे भी सब कुछ लिखा हुआ है ना एक वर्ड देखो हाईलाइटेड है। क्रिएट में सी हाईलाइटेड है, ऑल्टर में ए हाईलाइटेड है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में एच हाईलाइटेड है। ये हाईलाइटेड शो करता है कि उस की को भी प्रेस करोगे ना तो वो चीज ओके हो जाएगी। जैसे इसमें देखो एच है, जैसे मैं एच प्रेस करूंगा तो वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो जो हाईलाइटेड अल्फाबेट है ना, वो उस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। सी है, सी प्रेस करूंगा तो क्रिएट खुल जाएगा। ठीक है ना। तो सी पे मैंने एंटर किया तो मेरा क्रिएट खुल गया। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना लेजर। आज की जो हमारी क्लास है वो लेजर क्रिएशन पे है। तो आप सब देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर आपको ग्रुप के नीचे आ रहा है लेजर, ग्रुप के नीचे क्या आ रहा है, लेजर। तो हमें लेजर ही क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लेजर में मैंने एंटर किया, और एंटर करते लेजर का इस तरीके से कुछ एक इंटरफेस सिस्टम में खुल चुका है। तो हम लेजर क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने अपने पीपीटी में सीखा था कि हमारी क्या क्या टर्म्स यूज होने वाली है, तो उस टर्म्स के ऊपर चलते हैं। तो जस्ट मैं जा रहा हूँ अपनी पुरानी पीपीटी खोलने, जिससे मुझे वो चीजें पता लग जाए कि हमने कौन कौन से खर्चे रखे थे अपने पास। फिर हम अकाउंटिंग करेंगे और अपने डाटा को मैच करेंगे। तो हमारी पहली क्लास में था ना, फर्स्ट क्लास में था, वो भी से ओपन करते हैं। ठीक है ना, ये हमारी पहली क्लास थी, बिजनेस जर्नी ऑफ मन्नत फर्नीचर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ओके, ये सब आप सब पढ़ ही चुके हैं, उस दिन प्लानिंग व्लानिंग पढ़ चुके हैं। अब हमें करना है इसका अकाउंटिंग एंट्री। यस, तो आ चुके हैं हम लोग। अरेंजिंग मनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली हमारी क्या एंट्री हुई थी हमारे बिजनेस के अंदर, अमन इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इन टू द बिजनेस। वो कह रहा है कि 5 लाख रुपए बिजनेस में उसने लगाए थे। उसने एक करंट बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, बैंक अकाउंट डेबिट हमारा, मतलब एक बैंक अकाउंट उसने खुलवाया था। तो उसमें करंट बैंक अकाउंट का नाम नहीं है, तो हम कोई सा भी बैंक का नाम ले सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा जो अकाउंट है वो एच डी एफ सी बैंक अकाउंट के अंदर है। ठीक है ना। तो हम एच डी एफ सी का बैंक खोल लेंगे, और एच डी एफ सी बैंक से क्या करेंगे, अपने 5 लाख रुपए पैसे ले लेंगे अमन से, जो उसने पैसा लगाया है। ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए हमारे पास अकाउंट में आ जाएगा, 5 लाख रुपए, और अमन की कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल साइड में आ जाएगी। तो अमन को हमें फ्यूचर में 5 लाख देना होगा बिजनेस को। ठीक है ना। अब इसकी एंट्री करते हैं पैसा लगाने की बिजनेस में। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग टैली पे। तो टैली पे क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच डी एफ सी बैंक। क्या लिखेंगे, एच डी एफ सी बैंक। फिर हम करेंगे एंटर। एलाइस का मतलब होता है कि शॉर्टकट की क्रिएट करना। जैसे एच डी एफ सी बैंक है, तो मान लो जब मुझे मैं लेजर में एंट्री करूंगा ना, तो मेरे को एच डी एफ सी लिखना पड़ेगा पूरा। जब मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे कौन सा बैंक से, मान लो 10 बैंक है आपके पास, तो एच डी एफ सी को सर्च करने मुझे एच डी एफ सी लिखना पड़ेगा। लेकिन अब एलाइज में मान लो एच डाल दोगे सिर्फ, तो आप एच लिख के एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक वो एच डी एफ सी उठा लेगा। ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट की इसके लिए होता है वैसे एलाइज। अब आते हैं कि बैंक किस लेजर के अंदर आएगा। अब कौन बताएगा मुझे बैंक किस साइड में आएगा। बैंक अकाउंट। वेरी गुड। नाम और अपना प्लेस बता दो फटाफट। आशीष। फ्रॉम वेयर। दिल्ली। रोहिणी। ओके, वेरी नाइस आशीष, फॉर द वेरी क्विक आंसर। तो बैंक, एचडीएफसी बैंक को हम डालेंगे बैंक वाले लेजर में। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट करके है, ना ही हमारा ओडी अकाउंट है ना ही हमारा ओसीसी है। तो सिंपल हम इसको बैंक अकाउंट में डालेंगे। अब बैंक अकाउंट में डालते ही हमसे क्या पूछ रहा है, बैंक की डिटेल्स पूछ रहा है कहीं ना कहीं। तो अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं अकाउंट खुलवाऊंगा, करंट अकाउंट खुलवाऊंगा, तो मेरे मन्नत फर्नीचर के नाम से खुलवाऊंगा, जो मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम है। तो मन्नत फर्नीचर तो उसने ऑटोमेटिक उठा लिया अकाउंट होल्डर नेम में। ठीक है ना। अब यहाँ पे उसकी बाकी डिटेल्स बैंक की डालूंगा। तो बैंक की डिटेल्स में क्या क्या आता है, अकाउंट नंबर, ये डम्मी मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। एंटर के बाद आईएफसी कोड क्या होता है, तो आईएफसी कोड होता है HDFC 0162 इस तरीके से आपका एक एफसी आईएफएससी कोड होता है, मैंने वो भी डाल दिया। उसके बाद स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड होता है बेसिकली इज द कोड रिलेटेड टू, जैसे बाहर की कभी कोई बाहर से पैसा आता है ना, कभी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में, आईएफएससी कोड इज बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियली कोड होता है वो भी। लेकिन जब हम बाहर देश से, मैंने माल बाहर भेजा, जैसे मालदीव में मैंने माल बेचा, मैंने किसी और बाहर देश में बेचा, तो बैंकों का ना एक स्विफ्ट कोड भी होता है। तो उससे पैसा हमारे इंडिया में आता है। ठीक है ना। फॉरेन करेंसी इस स्विफ्ट कोड के थ्रू आती है। ठीक है ना। तो वो कोड है वो डाल सकते हो आप।
ब्रांच जैसे ब्रांच मान लो कहीं की भी ब्रांच हो, मान लो सभी उन्होंने अभी आशीष ने बताया कि मैं रोनी से, तो मैंने रोनी ब्रांच डाल दिया। ये आपके बैंक स्टेटमेंट में सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद इसने बोला कि क्या आप चेक भी प्रिंट करना चाहते हो। बेसिकली दिस इज द फंक्शन बेसिकली यूज फॉर द चेक प्रिंटिंग बेसिकली। ओके, तो चेक बुक में वो चेक बुक के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो अभी हमें चेक बुक वाला तो कोई काम करना नहीं, तो मैंने नो कर दिया है। तो वो इनेबल चेक प्रिंटिंग आ गया ना, उसी के रिलेटेड है चेक प्रिंटिंग कि आप अपने टैली से सीधा चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हो। जैसे चेक पे ऊपर नाम नहीं होता कि टू पे किसको पे कर रहे हो, अमाउंट इन रुपीज करके, फिर कॉलम वो एक फिगर्स वाला भी एक बॉक्स होता है, और फिर साइन होता है, फिर ऊपर डेट होती है, तो आप इसको कस्टमाइज करके ना इस तरीके से इनेबल भी कर सकते हो। ठीक है ना। और ये क्या है, चेक की रेंज लगी हुई है इसके अंदर, क्या लगी हुई है, रेंज लगी हुई है, जैसे चेक में नंबर होता है ना, उस तरीके से रेंज लगी पड़ी है। अगर आप इसको यस कर लोगे तो आपको फिर वो पूछेगा, डिटेल पूछेगा कि चेक की विथ कितनी है आपकी, जैसे चेक बुक होती है ना उसकी विथ पूछता है, हाइट पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, क्योंकि उसको प्रिंट करना होता है प्रिंटर में, तो उसके लिए है वो चीज। तो अभी तो हम इसको नो कर रहे हैं, जब आप अभी कभी आगे करोगे। तो एड्रेस के अंदर आप डाल दो बैंक का एड्रेस, अभी हम डाल देते हैं रोनी। अब रोनी कहाँ पर पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। पिन कोड डाल दो, आप कुछ भी डाल दो पिन कोड। मैं अभी तो ऐसे ही डाला हूँ डमी, वैसे जो भी हो। और हाँ, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि देखो, अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा अकाउंट पहले से भी चल रहा हो, अब देखो हमारा तो नया बिजनेस है, लेकिन अगर किसी का पुराना बिजनेस है, या फिर एक तरीके से मानो जब 1 अप्रैल 2026 आएगी, तो उस समय हमारा बिजनेस 1 साल पुराना हो चुका होगा। तो जब 1 अप्रैल 2026 आएगी, तो क्या 31 मार्च 2026 में कुछ ना कुछ मेरे अकाउंट में पैसे तो होंगे ना, वो कुछ ओपनिंग बैलेंस तो होगा ना उसके अंदर, बैंक के अंदर। तो ओपनिंग बैलेंस यहीं पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2025 में आपके अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं, तो होता है ओपनिंग बैलेंस, तभी तो बैलेंस मैच होगा ना, मेरा बैंक अकाउंट मैच होगा। तो इसलिए इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, जो हमारा पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होकर हमारा बैलेंस आया है। ठीक है ना। तो 31 मार्च को मेरा क्या क्लोजिंग बैलेंस रहा था, वो मेरे 1 मार्च में 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। तो अभी तो हमने नया अकाउंट खोला है, तो अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हम जीरो डाल देंगे सीधा, मतलब कुछ नहीं डालेंगे, एंटर करेंगे। यस। इससे क्या हुआ, आपका एक अकाउंट बन चुका है। क्या हो चुका है, एक्सेप्ट करते एंटर करते आपका एक अकाउंट बैंक वाला बन चुका है। अब एस्पेक्ट एस्केप करके पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, और फिर जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी, क्या शॉर्टकट की थी, कोई बताएगा, लेजर देखने की शॉर्टकट की क्या थी। सर DAL। DAL। शाबाश, DAL। क्या आप सभी को बैंक दिख रहा है, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक दिख रहा है ना सेकंड नंबर पे, HDFC बैंक। तो इसका मतलब है यस कि सर। HDFC बैंक का मेरा लेजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना। तो अभी अगर मुझे फर्स्ट एंट्री करनी है, तो उसके लिए मुझे कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है। तो दो इफेक्ट होते हैं, जब भी एक एंट्री प्रेस को प्रोसेस करोगे आप टैली के अंदर, तो दो चीजें डालनी पड़ती है, तभी आपका बैलेंस शीट हमेशा बराबर चलती है। क्योंकि टैली में क्या होता है, आपको सिर्फ एंट्री करनी है, बैलेंस शीट और पीनल टैली खुद बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना, ऑटोमेटेड रिपोर्ट खुद क्रिएट कर देता है टैली, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एंट्री करो, बैलेंस शीट टैली खुद क्रिएट कर देता है। लेट्स गो टू मेक अनदर लेजर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, सो बेसिकली नॉर्मल मैं एस्केप करके नीचे आ गया, अब फिर से मैं क्रिएट करूंगा लेजर। क्रिएट में एंटर मैंने किया, फिर से मैं लेजर में गया। अब की मैं क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। किसकी कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कमन की। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डालेंगे मिस्टर अमन। अब बताओ कैपिटल अकाउंट की साइड में आएगा। कैपिटल में। कैपिटल। शाबाश। कैपिटल तो अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगा। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट करते देखो, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ उसने पूछना बंद कर दिया। ठीक है ना। अब कैपिटल अकाउंट डालते हैं, फिर उसका एड्रेस वोड्रेस डाल दो, जो भी प्रोपराइटर है, मान लो अमन का जहाँ भी घर वर हो वो डाल सकते हो आप। कोई उत्तर प्रदेश में ही घर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारा बिजनेस है। ठीक है ना। पिन कोड आप डाल दो, जो भी डालो, उसके बाद बैंक डिटेल डालनी है वो भी डाल सकते हो, जो उसकी पर्सनल कोई बैंक डिटेल हो, उसका पैन नंबर डाल सकते हो। ठीक है ना। फिर ओपनिंग बैलेंस, अगर जैसे पता है ना पिछले 31 मार्च में कोई कैपिटल में बैलेंस आ रहा था, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ ओपनिंग में डाल सकते हो। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो है। तो ये मेरा सेकंड लेजर भी क्रिएट हो चुका है। फिर से हम एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, फिर से हम BAL प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारा लेजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। BAL हमने किया, और हमारा देखो
कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। तो अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी है और हमारे पास बैंक अकाउंट भी है, तो हम पहली एंट्री प्रोसेस कर सकते हैं टैली के अंदर। एस्केप एस्केप करके मैं गया, ठीक है ना। अब उसके बाद आज एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ लेजर क्रिएट करते हैं, एंट्री हम कल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेजर भी काफी सारे हैं। तो आज ही मैं अगर एंट्री करूंगा तो फिर एक दो एंट्री में हम रह जाएंगे, तो आज हम सारे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, कल हम एंट्री करेंगे इसकी सबकी, ठीक है ना। तो आज हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो चलते हैं पीपीटी के ऊपर। अब नेक्स्ट किसकी जरूरत पड़ेगी, किस लेजर की, देखो अमाउंट इन्वेस्ट करता 5 लाख रुपए हमने बिजनेस के अंदर, जो बैंक अकाउंट में डाला था हमने, तो बैंक हमारा क्रिएट हो चुका है और ना हमारी कैपिटल भी बन चुकी है। लास्ट की देखो पीपीटी की दोनों नीचे की दोनों लाइन देखो, बैंक अकाउंट वो भी हम बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट अमन का हमने वो भी बना दिया है। नेक्स्ट, ये तो हमारा थ्योरी था, ये रहा हमारा। फिर से प्रैक्टिकल आ गया। टुक ऑन रेंट, अब आ रहा रेंट, रेंट का खर्चा आ रहा है, तो हमें रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा टैली के अंदर। तो हम रेंट रेंट बनाना पड़ेगा, तो रेंट पे चलते हैं, रेंट प्लस कैश का लेजर बनाना है। कैश का तो ऑटोमेटिक आप लोगों ने देखा कैश का बना हुआ लेजर, तो हमें सिर्फ रेंट का बनाना लेजर। तो अब सीधा मैं गया टैली में, फिर से मैं गया क्रिएट में, और यहाँ पर फिर मैं लेजर में गया, फिर सिंपल मैंने क्या लिखा, रेंट एक्सपेंस। क्या लिखा, रेंट एक्सपेंस। अब रेंट किस में आएगा ये कौन बताएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। So रेंट में indirect कम। expense. वेरी नाइस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। शाबाश शाबाश शाबाश। अपना नाम तो आप जगह और वो अपना नाम भी तो बताओ ना। क्या होता है आप लोग नोटिस होते हो, जब आप अपना नाम और अपनी जगह बताते हो, कहीं ना कहीं हमारी टीम्स में भी कुछ लोग लगे होते हैं जो आप लोगों को सुपर हेड कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको फायदा मिलेगा एट द एंड। आप बस ये समझ लो, मैंने इतना बता दिया आपको क्लू, जितना जो एक्टिव होगा उसको उतना कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो आप एक्टिव रहोगे तो आपको रिवॉर्ड अलग से भी मिलेगा, ठीक है ना। तो बी एक्टिव और नाम बताया करो, उसे पता लगे ना कि ये बंदा आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो नाम और जगह फटाफट बता दिया करो। जैसे कोई आंसर तुरंत बता दो, जैसे अभी आशीष का था, आशीष फ्रॉम रोहनी, सर इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, सीधा आंसर देना, सेकंडों में आंसर हो जाएगा। फिर आपका जैसे इंडायरेक्ट एक्सपेंस बताया, सिंपल हम जाएंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करेंगे। टाइप ऑफ क्लोजर में इनवॉइसिंग राउंडिंग नहीं करना है इसको, एनेबल है, ओके। और ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ खर्चा है ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, सीधा एंटर किया, रेंट एक्सपेंस हमारा बन चुका है, ठीक है। फिर आते हैं हम पीपीटी के ऊपर, दूसरा खर्चा उसने बोला कैश में, वो कैश लेजर हमारा बना हुआ है। फिर उसके बाद बोला बोट फर्नीचर फिनिश गुड्स फॉर 1.5 लाख रुपीज इन कैश। उसने बोला कि हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है ना। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है, So stock है, inventory. स्टॉक है, वेरी नाइस। तो हमारा क्या है, गुड्स बोल सकते हो आप, परचेज बोल सकते सॉरी, हो। एसेट 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 क्या, स्टॉक। सॉरी। एसेट 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 मोक्ष। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल एसेट ही है, बिल्कुल हमारा स्टॉक हमारे लिए एसेट है, बिल्कुल सही। लेकिन जो हेड में आएगा, जो टैली के जो हेड में आएगा, वो किस में आएगा, परचेज में। जैसे बताया ना था रॉ मटेरियल किस में आता है, परचेज में, तो वो परचेज वाले हेड में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम जाएंगे। अब आप सब देख रहे होंगे सामने, अब देखो हम लेजर क्रिएट कर रहे थे, अब हमें बनाना है स्टॉक, हमें बनाना है इन्वेंट्री किताबों में। तो हम आएंगे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आएंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का काम नहीं है, हमारा स्टॉक क्रिएट करने का काम है। तो स्टॉक ग्रुप नहीं बना रहे हम, स्टॉक क्या बना रहे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम बना रहे हैं। तो सीधा हम स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे, जो कि इन्वेंट्री मास्टर में थर्ड वाला ऑप्शन है। स्टॉक आइटम में ओपन करते आपसे पूछेगा कि स्टॉक का क्या नाम है। तो हमने क्या परचेस करा था, फिनिश गुड्स था हमारा, और हमने परचेस किया था फर्नीचर। Furniture. सीधा फर्नीचर डाल दो आप, फर्नीचर डालते आपको एंटर करना है। अब एंटर करते ये पूछ रहा है अंडर, ये किसके अंडर आता है हमारा फर्नीचर, किस में आ रहा था अभी हमारा फर्नीचर, परचेज। फिक्स से Purchase. Purchase में raw फिनिश गुड्स, material. फिनिश गुड्स। जैसे हमारा क्या होता है, जो स्टॉक होता है ना, 3 भागों में बटा होता है, आप सबको पता है ना, एक फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और हमारा एक रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये हमने फिनिश गुड्स परचेज किया था, सीधा देखो, बॉट फर्नीचर फिनिश गुड्स, मतलब एक गुड्स बना हुआ है, इसमें हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेडिंग करूंगा इसके ऊपर, परचेज करूंगा, प्रॉफिट अपना ऐड करूंगा, सीधा मार्केट में बेच दूंगा, बिकॉज ऑफ ये हमारा फिनिश गुड्स है, ठीक है ना। इसमें मुझे कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ उसमें बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधा परचेज करना है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और मेरे को मार्केट में बेच देना है। ये हमारे लिए फिनिश गुड्स है, ठीक है ना। तो फिनिश गुड्स है, तो मैं इसको इसके अंदर एक लेजर के अंदर एक और लेजर क्रिएट करूंगा, दैट इज फिनिश गुड्स। तो कभी भी जब लेजर के अंदर लेजर क्रिएट करना होता है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, ओल्ड सी। फटाफट सारे अपने नोटपैड पे लिख लो, ओल्ड सी से क्या होता है, लेजर के अंदर क्रिएट हो जाता है, अंडर अंडर हेड बोल सकते हो, अंडर लेजर। सर एक लेजर बार के अंदर कभी
ओल्ट सी, ओल्ट सी। Alt C. हाँ, ओल्ट से क्या होता है, स्ट्रोक के अंडर वाला जो किस स्ट्रोक किसके अंडर आएगा उसको हमें हेड में डालना, तो हमें क्या होगा, ओल्ट सी से हम उस लेजर को क्रिएट करेंगे, उस हेड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ओल्ट सी करा, ओल्ट सी करते एक हेड बन के आ गया मेरे सामने। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड सी करते जब मैं हेड बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, फिनिश गुड्स। ठीक है जी, फिनिश गुड्स बनाया मैंने, एंटर किया, एंटर किया। अब जैसे देखो वहां पे मैंने फिनिश गुड्स के लिए ओल्ड सी करा था, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि प्राइमरी में आएगा किस में आएगा, तो हमेशा जो स्टॉक हम डालते हैं प्राइमरी में डालते हैं, क्योंकि इसमें गोडाउन होने वाला सिस्टम होता है, थोड़ा एडवांस लेवल है, उसको बाद में आपको बताएंगे, तो अभी प्राइमरी लेके ही चलो आप। ठीक है ना, क्वांटिटी अभी कुछ अभी मुझे ऐड नहीं करनी, मैंने एक्सेप्ट करा। और यूनिट्स, अब उसने पूछा यूनिट्स, अब यूनिट्स क्या होता है किसी स्टॉक के लिए, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, तो क्लास का टाइमिंग हो चुका है, फटाफट इसी को बनाएंगे हम लास्ट, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। इसी बता दो सर हाँ, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस क्वांटिटी यस सर, ठीक है, अगर जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक है वो पीसेस में है या बॉक्सेस में है, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे को अगर मैं ऑयल ऑयल सेल करता हूँ, तो ऑयल सेल के लिए वो किस में मेजर होगा, किस यूनिट में मेजर होगा। लीटर में लीटर लीटर में। में। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, तो क्या होगा, लीटर में होगा, तो मुझे यूनिट्स अभी, यूनिट्स नहीं यार, ये बात नहीं है। अभी क्या हमारे, अभी हमारे पास यूनिट्स बने नहीं हुए, तो हम ओल्ड सी के यूनिट्स बनाएंगे। ठीक, तो अभी देखो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया। ठीक है ना, अब सिंबल में क्या डालेंगे हम, PCS, पीस के लिए। ठीक है ना, और फिर एंटर करेंगे, और फॉर्मल नेम पूछ रहा है कि पीस का फुल नेम क्या होता है, PIECS, पीसेस। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेसिमल डेसिमल प्लेस में हम 0 रखेंगे। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। फिर वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ ड्यूटी, बेसिकली रिलेटेड टू GST वाला पार्ट है, उसको हम बाद में सीखेंगे, तो अभी हम एंटर एंटर, और देखो यहाँ पे ओपनिंग वाला बैलेंस डालेंगे, ओपनिंग में हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, ये ओपनिंग के लिए डाला हुआ है। ठीक है ना, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कि हमारे पास, तो हमने पिछले साल से कितना हमारा कैरी, तो आप उसको अभी आपको स्टॉक भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना, अब डिस्प्ले में चेक करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे हम लोग, फिर आप इसमें एस्केप एस्केप कर दो, तो आप देखेंगे डिस्प्ले में, फिर आपका देखो इसमें आपके टेली में क्या हुआ है, आपके टेली में आपका जो लेजर है वो भी क्रिएट हो चुका है, और आपका स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना, आज की क्लास में तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा और प्लस लेजर क्रिएट करना सीखा। अब टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि 10 बज टाइम हो चुका है हमारा, तो टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए अभी आपके पास कोई भी क्वेरी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, क्लास क्लास में अब मेरा हो चुका है, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। विक्की, अगर आपको असाइनमेंट दे दो पिछली बार की तरह, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैम, तो मैं अभी ना, अभी आपको ग्रुप में ना एक मैं वो स्टॉक क्रिएट करने का प्लस लेजर क्रिएट करने का मैं एक होमवर्क टाइप दूंगा, उसमें आपको लेजर और स्टॉक क्रिएट करने होंगे। ठीक ठीक ठीक। अब लास्ट है, अगर आपको किसी को कोई भी क्वेरी हो अब तक की क्लास में, तो यू कैन। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स वाइंड अप हियर। सो थैंक यू विक्की गौतम फॉर टेकिंग सो मच दिस अमेजिंग सेशन एंड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नाउ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने कैमरास को ओपन कर लीजिए, ताकि हम ग्रुप के लिए फोटो ले सकें रिकॉर्ड पर्पज के लिए। सो थैंक यू। इन द मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने फ़ोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स लिखकर ग्रुप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हम आगे हमारे आज के लीडिंग पर्सन मिस दीप्ति चावला मैम की ओर, जो कि सक्षम भारती की जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे सोसाइटी के एक स्टीम में परमानेंट मेंबर हैं। सो ओवर टू यू मैम।
Thank you so much, Abhishek. Am I audible, Abhishek? Yes, ma'am. Okay. So thank you so much for giving me this opportunity. And Jyotika ji, thank you again for, telling me, giving me, having this much trust in me and giving me this opportunity to be with all of you, all of us. अच्छा, जो सबसे मजेदार बात मुझे लगी, विकी, हैट्स ऑफ टू यू. तुम्हें मैंने छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए देखा है, और आज तुमने जो ये क्लास ली, ये इतनी इंटरेस्टिंग क्लास थी कि मैं अकाउंट्स के बारे में और टैली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी. और अगर मैं इसमें इतना सब कुछ, मतलब इतने ध्यान से मैं सुन रही थी कि मैं एक मिनट भी इधर उधर नहीं गई. कैसे लेजर क्रिएट होता है, किस तरह से टैली के बारे में तुमने बताया कि सॉफ्टवेयर ये है, ये जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और जिसका हाई कस्टमाइजेशन है, डिजिटल साइन इसमें हम कर सकते हैं. इस तरह की ऐसी अंदर अंदर की जो आपने बातें बताई, वो सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छी थी. मतलब मुझे समझ में आ रही थी. तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चे सीखने की इच्छा से यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने मोक्ष ने, आशीष ने, निशांत ने, आशुतोष ने बार बार अपनी क्वेरीज पूछी, और आपने जो कुछ सवाल किए इनसे, उन्होंने उनके जवाब दिए. ये सचमुच बहुत अच्छा था. और किस तरह से एक्सपेंडिचर के बारे में आपने बताया, किस तरह से आपने एसेट्स के बारे में बताया, और उसके बाद आपने ये जो प्रैक्टिकल सेशन लिया, मतलब थ्योरी तो बताई. अगर ये क्लास 1 घंटे की जगह 2 घंटे की भी होती ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ से उठ के जाने वाला होता. क्योंकि जिस तरह आपने शॉर्ट कीज के बारे में, डीएल के बारे में बताया, किस तरह एस्केप यूज करना है, किस तरह से अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है तो उसमें कोई स्विफ्ट कोड भी होता है. मुझे तो आज तक आईएफएससी कोड के बारे में ही पता था. तो कितनी ऐसी चीजें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और सच में अगर हम मन लगा के सीखेंगे तो बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं. फिनिश्ड गुड्स, प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल. देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर आप जब इन चीजों को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता चलता है. सो विकी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव. मैं टीचर हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह तुमने चीज को बहुत इंटरैक्टिव तरीके से, मतलब इट वाज नॉट वन वे, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल को आपने प्रस्तुत किया. और कल की क्लास में वापस हम आपसे मिलेंगे. और जो जिस तरह आपने कहा कि अभी समय की शॉर्टेज है, आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं. तो निश्चित रूप से जो भी आपने प्लान किया है और जो होमवर्क आप बच्चों को ग्रुप पर देने वाले हैं, वो बच्चे सब कर पाएंगे. क्योंकि लेजर क्रिएशन और उसके बाद लेजर के अंदर लेजर क्रिएशन, और कैसे वो अंदर लेजर क्रिएशन होना है, कौन कौन सी कीज को यूज करना है. Thank you so much for sharing all this information with us. Thank you. So thank you, ma'am, for your valuable comments. Now I'd like to request Mr. Ashish for a word of thanks. Good evening, dear friends. I am Ashish Saini, and on behalf of Saksham Rozgar Society, I want to say a big thank you. First, a special thanks to Mr. Vicky Gautam sir for teaching us about the income and expenditure in Tally in such a simple and wonderful way. I also want to thank to all of you, my dear students, of listening and participate so well. I hope you keep learning with the same excitement in every class. Lastly, a special thanks to Miss Dipti Chawla ma'am, General Secretary of Saksham Bharati and member of our Rozgar Society, for joining us today, and for her invaluable insight and support during the class. Have a great night, everyone. Thank you. So thank you for word of thanks, Ashish, and good night to all of you. Thank you for joining us today, and we'll see you in the next session. So Good night, everybody. Thank you so Good much, night. Dipti Good Chawla night. ma'am. Good night. Good night. Have a nice day. Have a good night. Good night, ma'am. Good night. Good night, ma'am.